Welcome, students. Okay, so today we study about the database connectivity in this session. So, database connectivity along with the program demonstration. Uh, so, first of all, we take blank file. Okay, so this is the blank file of this dot java and database demo.java. This file, the name of this file is the database.java. So before we start the programming, first of all, you know that the previous videos, then you become the familiar with the all the classes of our the database. Okay, so we take one by one, and it takes some time for this database connectivity, because it is a simpler one, but when you become the understand all the steps one by one. So okay, so I start. The first one is I create the database. Okay, so the name of this field is the roll number, name, city, and in this I create a table. The name of this table is student info. Okay, the and the name of the database is the student. Okay, so first of all, you know the understand the database concepts. So database concept in this, create the database student, and then create the student info table, and then in this I create the roll number, name, and city, and these are the different fields of this database record. Okay, so after creating this database, okay, you have to be create the dsn name. Okay, so these are the steps. I here is what these are the steps of this, how to create the dsn name. Okay, सिंपल डीएसएन नेम अगर आपको इंक्लूड करना है तो सिंपल वी हैव टू जस्ट go in these steps. First, go to the control panel, then data source, then select tab, user DSN, add button, select the proper database, and then finish. And then finally, you just get the DSN name. Okay, तो जस्ट मैं कंट्रोल पैनल में आपको दिखाता हूँ कि ऑलरेडी आई जस्ट क्रिएट द DSN नेम. Simple, go to the control panel. Then here is one option, ODBC. Okay, here is already I create the DSN name is student DSN. But if you want to add the new database, so just add your name of the database is what? Uh, Microsoft Access. Then the select the proper. यहाँ पे आपको उसका ये देना है, समझो उसको STUDDSN. ऑलरेडी हमने स्टूडेंट DSN दिया है. Okay, the name of this folder is available in the D drive. उसमें जहाँ भी फोल्डर है, okay, this file is available in another folder. So C drive.
So mm, this okay. So my database is available in AJP program or in this data DBA JDBC, and this is my account. Okay, student ACC DB, just I selected. Okay, तो STUD DSN name ये मेरा यहाँ पे okay, and then just you have to display here is what, okay, STUD DSN, this database is want to be created, but I already created the student DSN, so I just remove this. Okay, okay, so I remove this database. तो मेरा डेटा DSN नेम कौन सा है, स्टूडेंट DSN. इट इज़ वेरी इजियर टू क्रिएट द DSN नेम. First you create the database and then create the DSN name. Okay, means what, you just use the protocol driver. After database creation, you know that uh, create the क्लास फाइल. अब यहाँ पे बेसिक ये देखिए, जो आपका प्रोग्राम है, थोड़ा सा मैं प्रोग्राम आपको बोलता हूँ कि अगर आपको क्या करना है कि फर्स्ट क्रिएट द डॉट क्लास फाइल, देन फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर और लोड द ड्राइवर थ्रू ड्राइवर मैनेजर क्लास. तो हम पहली स्टेप करते हैं यहाँ पे, टू लोड द ड्राइवर. हम यहाँ पे पहले स्टेप थोड़ा सा जो भी पार्ट है हमारा कॉपी करते हैं, उसके बाद में ब्रैकेट इसको क्लोज करते हैं. अब बेसिकली द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, वी हैव टू क्रिएट द ब्लैंक डेटाबेस फाइल. अब इसके बाद में हम इसको सेव करते हैं. अब हमारा प्रोग्राम को रन करना है तो हम सिंपल जावा अभी okay, so file is compiled and this part is available to every time to hear what is the exactly output of our the database. Okay, so you become the familiar of this. So this is just I adjust the screen for the output and this program. Okay, so then second part is we have to create the driver. For this purpose, what is our the driver? To register the driver, simple, we use the step. ये देखिए, फर्स्ट स्टेप इज रजिस्टर द ड्राइवर, ड्राइवर मैनेजर क्लास हमको यूज करना है. सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू रजिस्टर द ड्राइवर, these are the basic steps. In there we use the class dot for name. एक जस्ट मैं आपको प्रीवियस फर्स्ट पीपीटी जो हमने क्रिएट किए थे वो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने जो भी स्टेप्स स्टडी किए थे, तो वन बाय वन वही स्टेप्स आपको यहाँ पे रिकॉल करना है. ओके, सो सिंपल. अभी फर्स्ट वी हैव टू रजिस्टर द ड्राइवर. तो हाउ टू रजिस्टर द ड्राइवर, सिंपल, द स्टेप इज व्हाट, फॉर डॉट क्लास डॉट फॉर नेम. तो क्लास डॉट फॉर नेम में हम ड्राइवर
लोड करेंगे। तो ड्राइवर लोड करने के लिए हम यहाँ पे ये कैच ब्लॉक कॉपी करते हैं और हमारा जो भी प्रोग्राम है वहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, टू रजिस्टर द ड्राइवर। थोड़ा सा यहाँ पे आपको, अब उसके बाद में मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ और उसके बाद में आई जस्ट राइट the catch block. In this catch block I use one simple exception, and this name of this exception is the class not found exception. Okay, and in this I also use another exception connections, where after this connection class I use this one another exception. So first step is what, simple, I use the class file connection class not found exception, whether there is a error in the program, then what, it can display the error. So already how to load the driver, class dot for name sun dot jdbc dot odbc dot jdbc odbc driver. Okay, so this is the first step to install the driver. Simple, if you want to be just take the output of this, then you get it. So if there is any, already this program is okay, so there is a error in the exception. Okay, so our file name is different. So name of this file is what, database demo. Okay, database demo. So we just again java okay, so we add one another exception, that is the connection. If there is a error, class not found or connection error, then we add one another exception to here. So then okay, so after adding the catch exception connection not established, then my first output is driver loaded. यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट जो स्टेप है वो कंप्लीट हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है वो एक बार आप ध्यान में कीजिए। फर्स्ट हमने डाटाबेस क्रिएट किया था, उसमें डीएसएन क्रिएट किया है, वो अलग पार्ट है। अब इन डॉट क्लास फाइल में हमने क्या किया है, देखिए क्लास डॉट फॉर नेम, इसमें ड्राइवर ऑलरेडी हमने ऐड किया है। देन आई जस्ट ऐड द टू कैच ब्लॉक, क्लास नॉट फाउंड एंड कैच एक्सेप्शन। ओके, इसके बाद में हमारा सेकंड स्टेप जो है, सेकंड स्टेप कौन सा है ये आप देखिए। तो सेकंड स्टेप में हमारा पार्ट कौन सा है कि डीएसएन नेम जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है वह हमको हमारे जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है उसके साथ में मर्ज करना है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा सेकंड स्टेप कौन सा है कि डिफाइन एंड एस्टेब्लिश द कनेक्शन थ्रू कनेक्शन क्लास।
तो कनेक्शन क्लास का भी आप वीडियो देख सकते हो, उसके बाद में आप इजीली फैमिलियर हो जाओगे इसके बारे में। तो कनेक्शन क्लास का बेसिक सिंटैक्स क्या है? कनेक्शन ऑब्जेक्ट इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन इन ब्रैकेट यूआरएल। तो यूआरएल कौन सा है हमारा? जेडीबीसी ओडीबीसी स्टूडेंट डीएसएन। स्टूडेंट डीएसएन कौन सा है? जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था वहाँ आपका वह स्टूडेंट डीएसएन है। तो सिंपल जस्ट आई कॉपी दिस कोडिंग पार्ट। सो यहाँ का थोड़ा सा आपको ये जो है कोडिंग पार्ट आप कॉपी कर लीजिए और तो यहाँ का फर्स्ट ड्राइवर अगर लोड होता है तो सेकंड स्टेप इज व्हाट? टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन डेटाबेस के साथ में कनेक्शन आपको करना है थ्रू डीएसएन नेम। तो फर्स्ट वी यूज द प्रोटोकॉल दैट इज द जेडीबीसी ड्राइवर ओडीबीसी एंड डीएसएन नेम। तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है और कनेक्शन क्लोज भी करना है। ओके, सो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट होने के बाद में आप प्रोग्राम सेव कीजिए एंड यू गोइंग इनटू द सेकंड स्टेप वेदर इज आप प्रोग्राम रन करके भी देख सकते हो। ओके ओके, सो सेकंड स्टेप इज कंप्लीट, ड्राइवर लोडेड हो गया है, कनेक्शन लोडेड हो गया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो इधर देखने आप थर्ड स्टेप इज व्हाट? क्रिएट एसक्यूएल स्टेटमेंट। आपको मालूम है कि एसक्यूएल स्टेटमेंट में आपको जो यूज करना है वो एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्यूरीज भी आपको क्रिएट करना है और एग्जीक्यूट भी करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर क्रिएट स्टेटमेंट का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए आपका जो प्रॉपर जो सिंटैक्स है और स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट नेम कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, यहाँ सिंटैक्स है। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आप स्टेटमेंट इंटरफेस के बारे में भी पढ़े कर सकते हो यहाँ। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट किया है। ये देखिए, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कॉपी करता हूँ और यहाँ जो अपना स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ या नहीं, तो उसके लिए मैं एक अनदर यहाँ क्यूरी लिखता हूँ। तो हमारे थर्ड स्टेप स्टेटमेंट ओके, तो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होने का वो उसका भी सक्सेसफुली हमने लिया है। तो इसको रन करने के बाद में स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट होने का हमको मैसेज मिलता है। अब उसके बाद में थर्ड स्टेप होने के बाद में हमारा जो है फोर्थ स्टेप वो कौन सा है? टू क्रिएट द क्यूरीज। अब हमको अगर क्यूरीज करना है तो आपको मालूम है कि यहाँ पे एग्जीक्यूट क्यूरी और एग्जीक्यूट अपडेट ऐसे दो पार्ट है। तो हम एग्जीक्यूट क्यूरी करेंगे क्योंकि हम सेलेक्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इंसर्ट अपडेट यहाँ डिलीट कर रहे हैं तो अपडेट इन दिस देर आर द टू मेथड्स एसोसिएटेड विद दिस स्टेटमेंट क्लास। सो हम सेलेक्ट यूज कर रहे हैं तो हम सिंपल एक क्यूरी लेंगे। यहाँ पे एक क्यूरी जो है एक स्ट्रिंग में हम कॉपी कर रहे हैं और वह क्यूरी का नाम है ओके
एक क्यूरी है यहाँ की हमारी, जो क्यूरी हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका नाम क्या है, सेलेक्ट S1 इक्वल टू सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ और वेयर सिटी इक्वल टू मुंबई, ये देखिए हमारा स्टूडेंट इन्फो क्यों दिया है यहाँ पे, क्योंकि हमने डेटाबेस में जो भी टेबल लिया है उसका नाम है स्टूडेंट इन्फो। और यहाँ पे हमने क्वेरी क्या किया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर द सिटी इक्वल टू मुंबई। तो मुंबई को में रहने वाले कौन है, सचिन तेंदुलकर और अक्षय कुमार। तो उसका क्वेरी यहाँ पे हमको आउटपुट में मिलेगा। ओके, ये हम बाद में देखेंगे। तो ये क्वेरी हमारी फायर करनी है हमको। तो क्वेरी फायर करने के लिए जब हम कुछ भी एसक्यूएल एक्सेप्शन यूज़ करना है हमको, तो for this purpose we use one another exception, and this name of this exception is the SQL exception। तो SQL exception भी ऐड करिए, तो कोई समझो क्यूरी में एरर आता है तो दे कैन बी उसको वो सॉल्व करता है। तो यह आपको SQL एक्सेप्शन भी आपको ऐड करना है, ये आप कर सकते हो। SQL एक्सेप्शन आपका ऐड हुआ है और यहाँ पे आपका क्यूरी क्रिएट हुआ है, आपको एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए आपको रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट, अभी ये देखिए कि ये पार्ट मैं डिलीट करता हूँ और फिर हम रन करके देखेंगे कि क्या होता है वो, फिर आप इजीली अंडरस्टैंड हो जाओगे। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं कि रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। ओके, तो हम यहाँ पे रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और जब रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में हमारा जो चौथा स्टेप्स है एग्जीक्यूट क्यूरी वाला, तो वो कंप्लीट होता है या नहीं हम ये चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे ये स्टेप मैं थोड़ा सा कट करता हूँ, तो आप देखिए कि अब क्या होता है, क्या आउटपुट आता है। अगर आउटपुट नहीं आता है तो फिर हमको ये एक्सेप्शन ऐड करना। ओके, तो हमने क्या किया है, क्यूरी किया है, एग्जीक्यूट क्यूरी, और आउटपुट हम देखेंगे। ओके, सो हमने एसक्यूएल एक्सेप्शन नहीं दिया है तो भी हमारा चौथा स्टेप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। But in case suppose there is a problem, you just always take the better side to the SQL exception। अब ये होने के बाद में SQL एक्सेप्शन होने के बाद में पांचवा स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है रिजल्ट सेट। अब रिजल्ट सेट में कैसा है कि हम RS ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमको एक्चुअली जो है काम करना है वो डाटाबेस साइड से काम करना है, और we just operate to the database। For this purpose we use the for method, next, previous, first, last, and then get int and get string। so इसका प्रॉपर सिंटैक्स है, वो सिंटैक्स आप अंडरस्टैंड कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तो इसके बाद में आपको उसका जो बेसिक स्टेप है वो आपको समझना पड़ेगा। तो ये देखिए आपका जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, बेसिकली व्हाइल लूप है, क्योंकि आपको वन बाय वन नेक्स्ट रो को जाना है। तो इसके लिए आप क्या करने वाले हो कि rs डॉट नेक्स्ट या लूप लेने वाले हो, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है रोल नंबर, नेम और सिटी।
रोल नंबर किस लिए कि मेरा जो पहला जो इंफॉर्मेशन है, अभी ये देखिए गेट रोल नंबर, ये मेरा वेरिएबल है rs डॉट गेट आई एन टी। गेट आई एन टी मैंने क्यों यूज किया है, क्योंकि मेरा जो रोल नंबर है ये आई एन टी फॉर्मेट में है। तो रोल नंबर जो भी वन है, वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री। तो यहाँ पे भी मैं वही करता हूँ, गेट आई एन टी वन, गेट स्ट्रिंग टू, क्योंकि दूसरा जो है स्ट्रिंग है, नेम है, और थर्ड कौन सा है, सिटी है, तो उसके लिए गेट स्ट्रिंग थ्री। ये सिंपल वे है। इसके बाद में आप कॉलम नेम से भी लिख सकते हो, बट इट इज़ अ वेरी सिंपल वे टू get fetch the information from this column, get int 1 2 and 3। एंड देन फाइनली यहाँ पे मैंने क्या किया है कि वह जो फील्ड है रोल नंबर में, मेरा जो भी इंफॉर्मेशन कॉपी होता है वह मैं डिस्प्ले करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो कि आर एस डॉट नेक्स्ट गेट आई एन टी, गेट स्ट्रिंग, गेट हमने देखा है। तो उसके बाद में कनेक्शन क्लोज करना है, तो सिंपल ये कॉपी कर लीजिए, इतना ही है ये। ओके, तो ये जो हमारा लास्ट स्टेप है, और उसके बाद में सबसे सिक्स स्टेप कौन सा है हम ना, कनेक्शन क्लोज। तो कनेक्शन भी क्लोज मैंने कर देता हूँ। तो सो बेटर वे you know that what is the output or okay, the simple just I compile this program because this is the last step of our database connectivity. मैंने सेव नहीं किया था इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए आउटपुट, देखिए आप, व्हाट इज द आउटपुट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको कम करता हूँ, तो आप जो है आउटपुट देखिए कि आउटपुट क्या आ रहा है, 101 104 सचिन तेंदुलकर मुंबई, अक्षय कुमार मुंबई। तो इधर देखिए ये जो डेटाबेस में देखिए सचिन तेंदुलकर मुंबई, अक्षय कुमार मुंबई। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पुणे करता हूँ, तो पुणे में कौन सा आना चाहिए, राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले। तो मैं थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे अगर मैं क्यूरी चेंज करता हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस मुंबई, अब डेटाबेस में खेलना है तो आपको जो भी है फील्ड पुणे, अगर यहाँ पे पी कैपिटल है तो पी भी यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे पुणे यहाँ पे लोड करता हूँ यहाँ, तो इसका आउटपुट देखिए आप क्या आता है। ओके, तो पुणे में आउटपुट कौन सा आ गया आपका, 102 103। ओके, तो अगर आपको जैसे भी क्वेरी चेंज करना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो नेम, सिटी पुणे वगैरह डिलीट करना है तो आप सिंपल यहाँ पे वेयर क्लास भी तुम्हारा क्लोज कर दीजिए। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। अब हेयर का पार्ट जो भी आपको लगता है वो आप बाद में भी आप अकॉर्डिंग टू योर द क्वेरी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यह आपका इधर आपको हर टाइम उसका जावा सी, अभी हमने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ओके, तो यहाँ पे आपको अगर क्यूरी में काम करना है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा
एसक्यूएल के लिए जो भी आपका इंफॉर्मेशन लगता है वह आपको इम्पोर्टेंट है, तो वो आप उसमें काम कर सकते। अभी अगर आपको एग्जीक्यूट अपडेट पे काम करना है तो उसके लिए आपको डिलीट, इंसर्ट या अपडेट यह आपके लिए जरूरी। तो in this way we make the database connection, result set object, database, or all these things will be covered in this programming. So as a part of the practical, okay, so write the database connectivity and to सबको आपको यहाँ पे इंसर्ट अगर भी इंफॉर्मेशन करना है तो भी आप यहाँ पे इंसर्ट क्यूरी कर सकते हो। तो अगर जस्ट आई टेक अ सिंपल क्यूरी, आपको अगर लगता है कि इंसर्ट भी यहाँ से करना है तो एक मैं करके देखता हूँ आपको, तो होता है या देखेंगे हम। तो ऑलरेडी हमारा प्रैक्टिकल का पार्ट कंप्लीट हुआ है, पर अदर देन दिस इफ यू वांट टू बी इंसर्ट द एनी इंफॉर्मेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्यूरी लिखना पड़ेगा। हमारा अगर क्यूरी लिखना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग s2 इक्वल टू, अभी हमारा जो है इंसर्ट, ओके, इंसर्ट इनटू, आपको कहाँ पे डालना है, स्टूडेंट इन्फो, बराबर है ना। आपका टेबल नेम कौन सा है यहाँ पे, देखिए स्टूडेंट इन्फो, बराबर है। तो इसमें आपको डालना है, तो आप फिर यहाँ पे क्या करने वाले, स्टूडेंट इन्फो, ओके। उसके बाद में क्यूरी क्या है अपना, वैल्यूज, ओके। तो आपको जो पहला फील्ड है आपका रोल नंबर है, तो आप 105 कर सकते हो। अभी आपका ये है, सेकंड नेम है, नेम राज है, ओके। और थर्ड जो है आपका, थर्ड कौन सा है, उसका सिटी, तो उसका सिटी आपका समझो हम औरंगाबाद देते हैं, ओके। तो आपका ये कंप्लीट होता है क्यूरी। उसके बाद में आपने क्या किया है यहाँ पे, क्यूरी लिया है, आपका जो भी क्यूरी लिया है, अब आपको क्यूरी भी आपको फायर करना है, तो उसके लिए आपको एग्जीक्यूट अपडेट लेना पड़ेगा। तो फॉर दिस पर्पस आप यहाँ पे ले सकते हो S2, सॉरी S2 नहीं, अभी आपका स्टेटमेंट कौन सा है, STMT। तो आपको अनदर स्टेटमेंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। जैसे कि दूसरा स्टेटमेंट है आपका स्टेटमेंट,
S2, sorry, statement 1. Okay, तो आई थिंक थ्योरी पार्ट विल क्लियर है, लॉजिकली तो हमने क्रिएट किया है, देखते हैं कि